ای کامرس کا دور ہے اور گھر بیٹھے شاپنگ کریں اور گھر بیٹھے کاروبار، یہ آج کل کا زمانہ ہے۔ آن لائن کاروبار سے خریدار اور فروخت کرنے والا دونوں ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان ای کامرس سے ہر سال تقریباً $1 بلین کماتا ہے، جبکہ امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو $550 بلین امریکہ کماتا ہے ای کامرس سے۔ اب ای کامرس ہے کیا؟ اصل سوال یہ ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور ہم کس طرح آن لائن کاروبار کر سکتے ہیں، فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور کس طرح رقم کمائی جا سکتی ہے، سوال یہ ہے دراصل۔ اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں، جو کہ نوجوانوں کو ایکسٹریم کامرس کے نام سے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے اور اس میں وہ نوجوانوں کو آن لائن کاروبار کرنا سکھاتے ہیں۔ سی ای او ایکسٹریم کامرس ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ خود سنگاپور، آسٹریلیا، ملیشیا میں کاروبار کرتے ہیں۔ سنی علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ مطلب جو آن لائن بزنس ہے اس سے ایک ڈر ہے لوگوں کا، جو کہ پاکستان میں جب آپ کسی سے بات کریں تو لوگ خریدتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور بیچنے کا تو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ای کامرس سے ایکسٹریم کامرس آپ نے جو کمپنی بنا لی، اس کے بارے میں بتائیے، ایکسٹریم کامرس ہے کیا اور کرتی کیا ہے؟ ایکسٹریم کامرس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے انٹرنیشنل ای کامرس۔ پاکستانی ای کامرس پہ ابھی ہمارا اتنا فوکس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ای کامرس ہے وہ بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہے۔ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ کیوں نہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچیں اور ڈالر لے کے پاکستان میں لے کر آئیں۔ اور وہ مارکیٹیں بہت بڑی ہیں، یورپ اور امریکہ ملا کے بنتی ہیں $850 بلین کی مارکیٹ۔ اوکے، تو اب $1 بلین کی مارکیٹ میں کام کر لیں یا $850 بلین کی مارکیٹ میں کام کر لیں۔ اب آپ کی جو ایکسٹریم کامرس جو آرگنائزیشن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو انٹرنیٹ پر سیلنگ کرنا اور کاروبار کرنا سکھایا جائے، اور امیزون کی طرف فوکس ہے آپ کا۔ جی بالکل۔ تو ایک کام کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو کچھ منٹ ہیں اس سیگمنٹ کے، ہم یوں کرتے ہیں کہ بھائی اب آپ دیکھیں کہ کیسے یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ تمام نوجوانوں، اب آپ ہیں، سنی علی ہیں، اور آپ کے سامنے ہزاروں ڈالر کا کاروبار ہے، کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے یہ بزنس؟ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ چلو، یہ تو آپ نے پہلے ہی ڈرا دیا، اور یہ تو ہماری، ابھی تو میں بھی موڈ بنا رہی تھی، یہ تو آپ نے کیا کر دیا۔ آئی وش کہ یہ اتنا آسان ہوتا، بٹ سٹل کوئی سٹیپس ہوں گے۔ چیلنجنگ بزنس ہے، کمپلیکس بزنس ہے، پیسے ڈوبتے بھی ہیں اس کے اندر، لوگوں کے پیسے ضائع بھی ہو جاتے ہیں غلط تجربوں کی وجہ سے، غلط پروڈکٹس میں کام کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، رائٹ ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ ایکسائٹمنٹ میں آ کے ای بے کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، امیزون کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور پروڈکٹس لگا دیتے ہیں بیچنے کے لیے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا فیلئر ریشو ہے 90%۔ یعنی کہ جی، ابھی آپ نے ایک اور بات بھی کی کہ آپ نے کہا پیسے ڈوبنے کا بھی ڈر ہوتا ہے لوگوں کو، تو ایکسپینسو بھی ہے کیا اگر ہم ای کامرس کی طرف آئیں؟ ایکسپینسو بھی ہے، اس میں کیپٹل انٹینسو بزنس ہے، اس میں آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو کیپٹل چاہیے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں 90% فیلئر ہے۔ پاکستان میں فیلئر ریشو 40% ہے اس وقت۔ یعنی پاکستان میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو 60% کامیابی ہو گیا؟ نہیں، پاکستان میں نہیں کام کر رہے، بلکہ پاکستانی سیلرز اگر امیزون پہ جا کے بیچ رہے ہیں تو ان کے سکسیس کے چانسز اس وقت 60% ہیں۔ That is good, I think. Yeah, that is absolutely great. تو کیسے سٹارٹ کرے کوئی شخص اور کتنے سرمایہ سے سٹارٹ کر سکتا ہے؟ ایکسٹریم کامرس کا ایک تو پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب چینل ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں سے لرن کرتے ہیں۔ میرا جو اصل گول تھا وہ یہ تھا کہ $1.8 بلین کا کیش انفلو پاکستان میں لے کر آیا جائے۔ گریٹ۔ اب وہ $1.8 بلین لانے کے لیے مجھے 50,000 لوگوں کو سب سے پہلے انیبل کرنا ہے کہ وہ $500 پر منتھ کما سکیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے وہ ایک پلیٹ فارم پورا، اس وقت ایکسٹریم کامرس پاکستان کا سب سے پاورفل ترین ایکو سسٹم ہے، فائنینشیل ایکو سسٹم۔ یہ اتنا پاورفل ہے کہ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹس، فورن پاکستانیوں کی انویسٹمنٹس جو ہیں اویلیبل ہیں، اور ینگ لڑکوں کو صرف اسکل گین کرنا ہے۔ انویسٹمنٹ از ناٹ این ایشو، انویسٹمنٹ موجود ہے۔ اچھا، اور یہ وہ انویسٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لو ہمارے پیسے، جا کے ڈبو دو اس کو۔ اوکے، یعنی کہ رسک ٹیکرز ہیں۔ جی بالکل، اتنا ٹرین کر دیا اصل میں نے ان کو کہ پیسے ڈبونے کے لیے سارے تیار ہو جاؤ۔ میں خود بہت بڑا انویسٹر ہوں، میرا اپنا $1 ملین میرے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پاکستانی 16 کروڑ۔ آپ کی کلاس میں انرول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جی مطلب جگہ ہے نا، ابھی 2 لوگ آ سکتے ہیں اور اندر۔ اس میں میرے پلیٹ فارم پہ پہلے لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو کہتے ہیں کہ 6 مہینے گزاریں۔ ٹھیک ہے، 6 مہینے تو خالی سسٹم کو سمجھنے میں لگیں گے آپ کو کہ کیا ہے یہ آن لائن بزنس، امیزون پہ کس طریقے سے اکاؤنٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیا پروڈکٹ بیچی جا سکتی ہے، کیسے بیچیں، کہاں سے سورسنگ کریں، پھر امپورٹ کیسے ہوگی، ایکسپورٹ کیسے ہوگی، وہ پورا پروسیس سمجھنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اور میری اپنی انویسٹمنٹس ہیں، میں بھی انویسٹ کرتا ہوں،
अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो असल जो गोल था कि वो 1.8 बिलियन डॉलर का है, और वो गोल कैसे अचीव होगा, ये है सबसे बड़ा पॉइंट। इसमें गवर्नमेंट का कितना अमल दखल है जी, या गवर्नमेंट कितनी का हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो यूथ पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की इंटीग्रेशन की और कोऑर्डिनेशन की इस वक्त बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन बेचना तो इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है जब से गवर्नमेंट ने ये 17% जीएसटी लगाई है। और वो 17% जीएसटी को क्लेम करने के लिए आपको अपने ई फॉर्म के अगेंस्ट में बायर की एडवांस पेमेंट लेनी होती है, जबकि इस बिजनेस मॉडल के अंदर बायर एग्जिस्ट नहीं करता। मैं टेक्निकली अपनी पाकिस्तानी दुकान से सामान निकाल के अमेरिकन दुकान में पहुंचा रहा हूँ, जबकि गवर्नमेंट कह रही है किधर है बायर, कहाँ है उसके पैसे। अच्छा, अब गवर्नमेंट को ये समझाना थोड़ा मुश्किल है कि अभी बायर नहीं आया, अभी तो मैं सिर्फ सामान अपनी दुकान से अपनी अमेरिकन दुकान तक पहुंचा रहा हूं। तो ये कुछ पॉलिसी चेंजेस की इस वक्त ज़रूरत है, जहां हमें एक्सप्लेन करना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अभी उनको ये प्रोसेस समझना होगा, उसमें हमारी हेल्प ये कि वो जो डिजिटल पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, मे बी उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़े। बट अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो वाई अमेज़ॉन, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये काम हो रहा होता है, वाई डू यू प्रेफर अमेज़ॉन? अमेरिकन मार्केट की अगर एग्जांपल ली जाए तो वो है $550 बिलियन की मार्केट है, जिसमें से 57% मार्केट शेयर तो सिर्फ अमेज़ॉन का है, 7.5% मार्केट शेयर ईबे का है, 3.5% मार्केट शेयर वॉलमार्ट का है, और 15 से 20% मार्केट शेयर है फेसबुक और गूगल का, फ्रॉम ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव। तो मेरी लॉजिक ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में आप काम करें, जो चैलेंजेस होंगे आप उसको फेस करें, लर्न करें, लेकिन आपके मिलियनर बनने का क्या चांस है? शायद आपका मिलियनर बनने का चांस है 0.05%। ले लें ये चांस, ओके, क्योंकि यहाँ पे मिलियनर बनने का चांस होगा आपका 0.00001%। मेरा ख्याल है 0.05% चांस बेहतर है 0.0001%। ये तो मतलब नंबर्स ही प्रूव करते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तानी बहुत सारे ये काम कर भी रहे होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे इंटरनेट पर, इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, सबसे बड़ी गलती क्या करता है पाकिस्तानी जब वहाँ पर सेल करने के लिए जाता है तो, और फिर उसकी वजह से नाकामी होती है? पाकिस्तानी, जब मैं 2017 में पाकिस्तान आया था तो पूरा पाकिस्तान एक ही ट्रेंड पे लगा हुआ था। मामू का अकाउंट लेते थे, उस पर काम करते थे, और पूरा पाकिस्तान या तो लेदर जैकेट बेच रहा था, या फिर पेशावी चप्पल बेच रहा था अमेज़ॉन के ऊपर, या जेम स्टोन्स बेच रहे थे, या बॉक्सिंग ग्लव्स हो गए, या डेमस्कस नाइफ्स हो गई। पाकिस्तान की लिमिटेड चंद प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टॉवल्स भी हैं, बेड शीट्स भी हैं। तो बेसिकली ये कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तानी सेलर्स बेच रहे थे, और वो पाकिस्तान से शिप कर रहे थे। ठीक है। तो मैंने आके जो नई डायरेक्शन दी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को मैंने बताया आके कि आप जो मेथड कर रहे हैं वो सही नहीं है। राइट मेथड ये है कि हम सामान को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखें, एक ब्रांड क्रिएट करें, और वो फ्लिपेबल ब्रांड है। फ्लिपेबल ब्रांड का मतलब ये होता है कि अमेज़ॉन का जो अकाउंट है वो आपका एज ए एसेट खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। जिस तरह आप रियल इस्टेट ज़मीन खरीदते हैं, इसी तरीके अमेज़ॉन का अकाउंट खरीदा और बेचा जाता है मार्केट में। तो अगर आपका अकाउंट $10,000 महीने का प्रॉफिट बनाता है तो $10,000 मल्टीप्लाई बाय 35 मंथ, यानी कि वो $3.5 लाख की अब उसकी वैल्यूएशन है। बिल्कुल। कोई भी बायर आएगा, बोलेगा मुझे आपका अकाउंट पसंद है, आप बोलेंगे लाओ $3.5 लाख दो और ले लो, ये अकाउंट आपका हुआ। लेकिन फिर वही बात है कि आपने कहा वैरायटी नहीं है, हमारी प्रोडक्ट लाइन बहुत लिमिटेड है, तो फिर लोग हमसे क्यों खरीदेंगे? मतलब वहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, चाइनीज मार्केट है, गारमेंट्स का देखें तो बांग्लादेश का है, वो हमसे क्यों लेंगे? पहली बात तो ये कि हमसे नहीं खरीदेंगे वो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ ना बनाने को है। इंडस्ट्री, बिजली के मसाइल, प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट्स नहीं बन रही, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, और करेंसी इंपोर्ट के मसाइल, रॉ मटेरियल खरीद नहीं पा रहे इस वक्त हमारे लोग। चाइना से रॉ मटेरियल खरीदना है, उसकी भी इजाज़त नहीं, स्टेट बैंक पैसे नहीं जाने देता पाकिस्तान से बाहर। तो लोगों ने मजबूरन दूसरे मुल्कों से सामान खरीदना शुरू कर दिया है। और मैं ये एंड पे ये कहता हूँ कि मेरा मकसद करेंसी इंपोर्ट था, शायद मैं पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में इतना इम्पैक्ट ना ला पाऊँ जितना मैं करेंसी इंपोर्ट में ले आऊँगा।
मेरी लॉजिक बड़ी सिंपल है, आप नहीं बना सकते प्रोडक्ट, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, रॉ भेजें, चाइना से ले लो, अमेरिकन को भेज दो, बल्गेरियन से खरीदो और जर्मन को भेज दो, मैक्सिकन से खरीदिए, अमेरिकन को बेचे, पैसे पाकिस्तान में लेकर आइए। सही। ये 1.8 बिलियन डॉलर करेंसी इंपोर्ट की मैं बात करता हूँ, ये 1.8 बिलियन डॉलर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो अभी मैंने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त 360 मिलियन डॉलर की एक्टिविटी हो रही है। ओके। 350 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी सेलर्स बेच रहे हैं और ये पिछले 3 सालों में ये एक्टिविटी क्रिएट की है। मेरा गोल 1 बिलियन डॉलर का था, लेकिन फिलहाल मैं 350 मिलियन डॉलर तक पहुंच पाया हूं। लेकिन ये कि वो सफर तो जारी है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपका जो एक YouTube चैनल है एक्सट्रीम कॉमर्स का, जी। और Facebook पेज है, वहां पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी जो चाहे वो जाए और वहां से जाके सारी ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। आप लोग कैसे रीच करते हैं अपनी जो यूथ है उसको सिखाने के लिए? सेमिनार्स वगैरह कुछ होते हैं? जी, सेमिनार्स होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, इंटरनेशनल पूरी वर्ल्ड में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट से लेके यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, पाकिस्तान, पूरी वर्ल्ड में मैं सेमिनार्स करता हूँ। और मेरा पूरे साल का स्केड्यूल होता है, क्योंकि मेरा जो असल काम था वो ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं इंगेज कर दूँ, आपस में ब्रिज क्रिएट कर दूँ। तो 1.8 बिलियन डॉलर खुद ही आ जाएगा। आप सिर्फ इनेबल कर दें, रोडें बिछा दें, बिजली लगा दें, खंबे लगा दें, लोग खुद ही गाड़ियाँ चलाएंगे, खुद ही इकोनॉमिक एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है ना। जी करेक्ट। जी। तो अभी कोई सेमिनार्स होने हैं आपके यहाँ पर पाकिस्तान में? लोगों को बता दें जो इंटरेस्टेड है वो देखने आए। अभी मेरे फाइनल आखिरी 2 सेमिनार रह गए। इस्लामाबाद का कल फिनिश हुआ है, आखिरी 2 सेमिनार, एक लाहौर में संडे को लाहौर में है और एक शायद परसों है सियालकोट में। तो वो उनको एक्सट्रीम कॉमर्स के पेज पे डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन इस संडे को लाहौर में। बिल्कुल ठीक है। फाइनली क्योंकि लोग इंस्पायर होते हैं एक ह्यूमन स्टोरी से, आपकी अपनी स्टोरी को अगर जरा समराइज कर दें कि आपने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ से काम करते हुए आप कहाँ पहुँच गए? मैं कराची की कच्ची बस्ती में पैदा हुआ था और सारी ज़िंदगी मैंने कच्ची बस्ती में ही गुजारी है। टीन की छतों के नीचे रहा हूँ मैं, और मैं कराची में बहरिया कॉलेज का पढ़ा हूँ, वहाँ का ग्रेजुएट हूँ। और बड़ी मुश्किल से मैं निकला था। वैसे मेरा गोल था कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे दुनिया में बिज़नेस करना है। सक्सेसफुल हो गया, मैं निकल आया, मैंने बहुत एफर्ट की, मैंने जॉब्स की। फिर उसके बाद पहली बार मैंने 2005-2004 में बिज़नेस स्टार्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया था मैंने। वो मेरा पहला बिजनेस था। तो मैं 2008 में बैंकरप्ट हुआ, उसके बाद 2012 में बैंकरप्ट हुआ, उसके बाद 2015 में बैंकरप्ट हुआ। तो 12 साल मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाऊँ। तो वो मैं आज जब यंग लोग मेरे पास आते हैं कि 12 साल में आपने गिव अप नहीं किया और आप किस एक ऐसी मिस्टेक बता दें जिसको आज आप कहते हैं कि हाँ वो मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ लिया था। अच्छा, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं ये समझता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे मशवरा दे। ये मेरी लाइफ की थी सबसे बड़ी मिस्टेक। मुझे चाहिए था कि मैं उस वक्त एक मेंटोर के पास जाता और उसको कहता कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए, मेरी ज़िंदगी के जो 12 साल बर्बाद होने वाले हैं और जो $1 मिलियन मैं बर्बाद करने जा रहा हूँ, वो मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। सही है। तो पाकिस्तान में अभी भी लोग मेंटरशिप के नाम से डरते हैं। तो सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई काम करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से पहले कंसल्ट करें। गोल्डन रूल यही है कि एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, मेंटर्स बनाएं, और वो मेंटर्स आपको कामयाबी की तरफ लेकर भी जा सकते हैं और जो रिस्क आपने लेना है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सनी अली, आप आए यहाँ पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोगों ने आपका ये देखा होगा सेगमेंट, उन सब के दिल में ये बात जाग गई होगी कि वाकई मेंटोर बनाया जाना चाहिए, और बहुत सारे लोग आपको अब अपना मेंटोर बना लेंगे। तो इंशाल्लाह जो टारगेट आपने रखा है अपने लिए भी और जो पाकिस्तान के लिए भी टारगेट रखा है वो ज़रूर पूरा होगा। थैंक्स अ लॉट।